سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نااہلی کیس میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لندن فلیٹ اور بنی گالہ اراضی کی منی ٹریل سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا دعویٰ کیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ اگر لندن کے کئی بینک اب بند ہو چکے ہیں تو آپ نے ریکارڈ کہاں سے لیا؟ عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے کہا ریکارڈ اکاؤنٹنٹ سے لیا ہے۔ قطری خط کتنی شرم کا باعث بنا یہ بھی علم ہے۔ ریکارڈ کی تصدیق کے لیے لندن بھی جانا پڑا تو جاؤں گا۔ حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ جب تک دستاویزات کی تصدیق نہیں ہو جاتی منی ٹریل کو مستند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے مطابق عمران خان نیازی سروسز چھپا کر صادق اور امین نہیں رہے۔ نعیم بخاری نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت عدالت کے پاس نااہلی کا اختیار نہیں۔ جب تک قانونی ذمہ داری کی خلاف ورزی نہ ہو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس اعجاز افضل نے بھی پاناما کیس کے فیصلے میں لکھا کہ 184(3) کے تحت ایسا کرنا ممکن ہی نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے۔ لندن فلیٹ کی خریداری میں منی لانڈرنگ کا کوئی معاملہ نہیں، رقم پاکستان سے باہر نہیں گئی۔ آسٹریلیا اور لندن سے کرکٹ کی کمائی کا ریکارڈ مل گیا ہے، صرف کاؤنٹی کا 20 سال سے پرانا ریکارڈ دستیاب نہیں، باقی سب پیش کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جاننا چاہتے ہیں کیا عمران خان کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم تھی؟ اکاؤنٹ میں کتنی رقم آئی اور خریداری کے لیے ادا ہوئی؟ نعیم بخاری نے کہا عدالت کے سامنے یہ مقدمہ نہیں کہ ان کے موکل کے پاس لندن کے فلیٹ کے لیے رقم تھی یا نہیں، مقدمہ نیازی سروسز چھپانے کا ہے۔ ٹیکس چھپانے اور ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ عمران خان نے غیر ملکی کمائی پاکستان میں ظاہر نہیں کی کیونکہ غیر ملکی آمدن ظاہر کرنے کی کوئی پابندی نہیں تھی، نہ ہی اس حوالے سے FBR نے کبھی کوئی نوٹس جاری کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، درخواست گزار کے مطابق عمران خان 1981 سے ٹیکس فائلر ہیں، ٹیکس لاگو ہو یا نہ ہو آمدن ظاہر کرنا لازمی ہے۔ نعیم بخاری نے عمران خان کے ٹیکس گوشوارے عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا اس سے واضح ہو جائے گا کہ عمران خان نے ٹیکس چوری نہیں کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، بنی گالہ اراضی کے معاملے پر آپ نے کہا تھا کہ $1 لاکھ ٹریس نہیں ہو رہے۔ نعیم بخاری نے جواب دیا، جمائمہ سے دستاویزات کے بعد منی ٹریل مکمل ہو گئی ہے۔ عمران خان کے دوست راشد علی خان عدالت میں موجود ہیں، ان کے مطابق رقم جمائمہ نے ہی بھجوائی تھی۔ $2,70,000 جمائمہ کے بینک اکاؤنٹ سے کس طرح گئے، تفصیل موجود ہے۔ جسٹس فیصل عرب نے کہا راشد خان کے اکاؤنٹ میں $1 لاکھ 23 جنوری 2003 کو آئے۔ مئی 2003 میں $1 لاکھ سے زائد رقم پاکستان منتقل ہوئی۔ رقم بنی گالہ زمین کی خریداری کے بعد موصول ہوئی۔ نعیم بخاری نے بتایا کہ جمائمہ نے مجموعی طور پر $4,08,000 بھجوائے۔ بنی گالہ اراضی جمائمہ کے رہتے ہوئے خریدی گئی۔ میاں بیوی کے درمیان کم یا زیادہ ادائیگی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل نعیم بخاری کو دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ساتھی رپورٹر عبدالقیوم صدیقی اور اویس یوسف زئی کے ساتھ قمبر زیدی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ وہ شریف خاندان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان پر غلط الزامات لگائے، انہیں الزامات کی وجہ سے وہ اپنے 40 سال کے ریکارڈ کی کھوج لگا سکیں۔ سوشل میڈیا پر بیان میں عمران خان نے کہا کہ انہوں نے خود کو قوم کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش کیا ہے۔ احتساب کے اسی عمل نے شریف خاندان کے مالی جرائم کا پردہ چاک کیا۔ جبکہ وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے مخالفین کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم سازش کر سکتے ہو، غیر اخلاقی کام کر سکتے ہو، لیکن قسمت سے نہیں لڑ سکتے۔ تم حسد کرتے ہو، کڑ سکتے ہو، لیکن بالخصوص دوسرے کی قسمت سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ خان صاحب آپ سے منی ٹریل مانگی تھی، آپ نے منی ٹریل دے دی، بنی گالہ کا حساب پورا نہیں ہو رہا۔ ابھی تو گلاس، لباس اور انرجی پاؤڈر کا حساب بھی لینا ہے۔ نون لیگ کے ایک اور رہنما حنیف عباسی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان بنی گالہ اور غیر ملکی فنڈنگ کیس میں فارغ ہو گئے ہیں، یقین ہے کہ نااہل ہوں گے۔ دوسروں کے لیے جس منی ٹریل کا کنواں کھودا عمران خان اسی کنویں میں گریں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان نااہلی کیس میں نون لیگ کی دکان بند ہو گئی ہے، اب یہ کیا بیچیں گے؟ ہندانیہ العزیز، حنیف عباسی اور طلال چودھری جیسے چمچوں کے لیے وہ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چمچے 72 گھنٹوں کے لیے بھی وزیر نہ بننے کا غصہ یہاں نہ اتارے۔ فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے تو $5,000 کا بھی حساب دے دیا، منی ٹریل بھی دے دی۔ کمائی حلال کی ہو تو قطری خط اور جعلی دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوتی۔
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत नोटिस पर जंग ग्रुप ने जवाब जमा करा दिया। अदालत से नोटिस वापस लेने की इस्तदा की गई। जवाब में कहा गया कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक मामले पर दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने की हेडलाइन जंग समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर रिपोर्ट हुई, मगर नोटिस सिर्फ जंग और दी न्यूज को मिला। हालांकि दी न्यूज ने खबर को दुरुस्त अंदाज से रिपोर्ट किया। तमाम मीडिया पर आने वाली खबर की जांच की जाए ताकि एक इदारे के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का तासुर ना उभरे। दी न्यूज के रिपोर्टर अहमद नौरानी ने JIT की देखभाल के लिए ISI को अहकामात से मुतालिक अहम खबर की तस्दीक की मुखलिसाना कोशिश में फाजिल जज को फोन किया। जंग ग्रुप अदलिया की आज़ादी, इज्जत, वकार, अजमत और पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की विरासत का अमीन है। नोटिस में बयान करदा कोई इकदाम और गलतियां मुअज़्ज़ज़ अदालत और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज नहीं। जंग ग्रुप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में अदालत उज़्मा से मुअद्दिबाना गुजारिश की गई है कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने से मुताल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने की हेडलाइन तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और न्यूज एजेंसीज ने एक जैसी ही शाया की, जिसका रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक हुक्मनामे का पहला हिस्सा रोजनामा जंग में दुरुस्त शाया हुआ, जबकि तस्वीर लीक से मुताल्लिक दूसरा हिस्सा मुख्तलिफ अंदाज में छपा। इसी अखबार में उसी दिन बयक वक्त एक और जगह ऑर्डर का दुरुस्त हिस्सा भी शाया हुआ, जिससे जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को शाया करने से मुताल्लिक कोई अनाद का अंसर शामिल नहीं था और रिपोर्ट को हकाइक के बरक्स शाया नहीं किया गया। जंग ग्रुप के जवाब में कहा गया है कि द न्यूज अखबार ने खबर को दुरुस्त अंदाज में पेश किया, मगर फिर भी नोटिस में इसका तस्करा किया गया है। नोटिस में शामिल द न्यूज के रिपोर्टर अहमद नूरानी की खबर से मुताल्लिक जंग ग्रुप ने जवाब में कहा कि रिपोर्टर ने लैंडलाइन पर 2 मरतबा एक फाजिल जज से राब्ता किया ताकि इस खबर की तस्दीक की जा सके कि JIT की देखभाल से मुताल्लिक आया ISI को अहकामात दिए गए हैं। रिपोर्टर अहमद नूरानी ने इस ज़िम्न में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 2 रोज कबल खत तहरीर किया, मगर दुरुस्त जवाब न मिलने पर जज साहब से राब्ता किया। राब्ते का मकसद अहम खबर की तस्दीक की मुखलिसाना कोशिश थी। जंग ग्रुप ने जवाब में कहा कि जंग ग्रुप अदलिया की आज़ादी, इज्जत, वकार, अजमत और पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद और विरासत का अमीन है। ये जंग ग्रुप के तस्वुर से बाहर है कि इंसाफ और जजेस के एहतराम से मुताल्लिक तौहीन का तस्वुर भी करे। तौहीन अदालत के नोटिस में बयान करदा कोई इकदाम और गलतियां मुअज़्ज़ज़ अदालत और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज नहीं। 20 जून को अदालती हुक्म से मुताल्लिक रिपोर्ट तकलीफ का बायस बनने पर अदालत से इंतहाई खुलूस से अफसोस का इजहार किया जाता है। जवाब में अदालत उज़्मा से इंतहाई आजिज़ी से गुजारिश की गई है कि तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। तौहीन अदालत केस में जंग ग्रुप के प्रिंटर पब्लिशर मीर जावेद रहमान, एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान, द न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद नूरानी अदालत उज़्मा में पेश हुए। अदालत ने कहा कि आपके अखबार ने JIT को निशाना बनाया, गलत खबर छापी। मीर शकील रहमान ने कहा कि JIT से मुतालिक सिर्फ एक खबर गलत साबित हुई। इदारे ने रज़ाकाराना माफी मांगी। ISI और WhatsApp समेत दीगर तमाम खबरें दुरुस्त साबित हुई। अदालत में कहा गया कि हम किसकी एमा पर खबरें छाप रहे हैं। बसद एहतराम अगर मेरा स्टाफ मुझसे ये पूछे तो मैं कहूंगा कि आप किसकी एमा पर ये सवाल कर रहे हैं, मगर मैं तो अदालत से सवाल भी नहीं कर सकता। जस्टिस अजमत ने कहा कि हम सब के लिए प्रेस की आज़ादी मुकद्दम है। जब चीजें बर्दाश्त से गुजर जाती हैं तो हम गिले शिकवों के लिए बुलाते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी हमारी बात भी मान लिया करें। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान, प्रिंटर पब्लिशर मीर जावेद रहमान, द न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद नूरानी अदालत उज़्मा में पेश। समाअत जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकील रहमान ने कहा गया कि ये खबरें छपी हैं, किसकी ईमा पर छपी हैं। मेरे एडिटोरियल बोर्ड को इस इल्जाम से शदीद तकलीफ हुई। अगर कोई खबर गलत छपी तो इस पर मुझे अफसोस है, मगर मैं फाजिल जज साहिबान के सामने बहुत एहतराम से कहता हूँ कि अगर मेरा स्टाफ मुझसे ये पूछे कि आप किसकी ईमा पर ये खबरें छाप रहे हैं तो मैं अपने स्टाफ से कहूंगा कि आप ये सवाल किसकी ईमा पर कर रहे हैं, मगर मैं अदालत में तो ऐसा सवाल नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ज़राए को बुनियाद बनाकर खबर छापी गई कि अदालत ये हुक्म देने जा रही है। खबर ऐसे छापी गई जैसे कि कोई अदालती हुक्म हो। जस्टिस अजमत शेख ने कहा कि
हम इस बात से आमादा हैं कि आपके बुनियादी हकूक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हम आपसे तकरार नहीं कर रहे, लेकिन आपके अखबार ने जानबूझकर ऐसी खबरें छापी, आपको भरपूर मौका फराहम करेंगे। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आपकी अखबार में JIT की रिपोर्ट के नताइज पर मबनी खबर छपी जो गलत साबित हुई और आपको अपने अखबार में इसकी मुआफी छापनी पड़ी। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि इदारे ने रज़ाकाराना माफी मांगी। अदालत ने नहीं कहा था, मुझे दुख हुआ, हमारी एक खबर गलत हो गई। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक भी गलत रिपोर्टिंग हुई थी। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि जहां खबर गलत होगी माफी मांगना चाहिए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हम जो तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं इसकी वजह यह है कि हम सब के लिए प्रेस की आजादी मुकद्दम है। मैंने अपने फैसलों में लिखा कि अगर कोई गैर जरूरी तनकीद हो तो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब बर्दाश्त से चीजें गुजर जाती हैं तो हम गिले शिकवों के लिए बुलाते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी हमारी बात भी मान लिया करें। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि जो आपके रिमार्क्स होते हैं वो ऑर्डर शीट में नहीं होते। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो आइंदा अपने रिमार्क्स को ऑर्डर में शामिल कर लेंगे। क्या आप इस बात पर जोर दे रहे हैं? इससे आपके लिए मसला पैदा होगा। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि ये आपका हक है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपको नोटिस दिया है, इसमें सब चीजें आ जाएंगी। प्रेस की आजादी मुकद्दम है, मगर किसी पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि फाजिल जज साहिबान से इत्तेफाक करता हूँ। मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि अदालत ने इश्तिहारात का 3 माह का रिकॉर्ड मंगवाने की बात की जो हुकूमत की जानिब से ताहाल पेश नहीं किया गया। इजाजत दी जाए कि जंग ग्रुप ये तफसीलात अदालत में पेश करे। न सिर्फ 3 माह बल्कि मौजूदा दौरे हुकूमत, गुज़िश्ता हुकूमत और इससे पिछली हुकूमत के इश्तिहारात की तफसीलात मंगवाई जाएं। इश्तिहारात इसी को ज्यादा मिलते हैं जो अखबार मार्केट में ज्यादा पढ़ा जाता हो और जो चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता हो। खैबर पख्तूनख्वा में जहां इमरान खान की हुकूमत है वहां से जियो को सबसे ज्यादा इश्तिहार मिलते हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि इश्तिहारात का मामला इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। आप जो जवाब दाखिल करना चाहते हैं 22 अगस्त तक कर दें, जिसके बाद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर कंबर जैदी के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इफ्तिखार चौधरी के जमाने से आज तक हम अदालती रिमार्क्स की बिल्डिंग्स बनाते आए हैं। कानूनी माहिरीन से आज पता चला कि हम और तमाम मीडिया गलत करते रहे। रिमार्क्स की हैसियत तो जीरो है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि हिफाजती इकदाम से बचने के लिए ऑयल टैंकर माफिया की ब्लैकमेलिंग रंग दिखाने लगी है। हड़ताल की वजह से पेट्रोल की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। ओगरा के तर्जुमान ने कहा कि ऑयल टैंकर्स माफिया ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन ना ब्लैकमेल होंगे ना इंसानी जिंदगियों से खेलने देंगे। शुबा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस हड़ताल के पीछे हैं। जो हमारे ऑयल रूल्स, जो हमारे ये नोटिफिकेशन है, हम इसको रिकंसिडर करने को तैयार हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे साथ आए, बैठे, बात करें, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग जो है ना ये मुनासिब नहीं है। हमें ये शुबा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस स्ट्राइक के पीछे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पब्लिक लाइफ और सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए, और इसके पीछे जिन भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हाथ है वो इंशाल्लाह एक्सपोज हो जाएंगी और उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा जो OMCs के पीछे इन्वॉल्व है। इससे पहले हुकूमत और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। एसोसिएशन के सदर यूसुफ शहबानी ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम, तमाम तर OMCs और तमाम तर कंपनियों के MDs है। हमारा हड़ताल जारी और सारी है और पूरे पाकिस्तान में जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा जब तक हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे मुतालबात नहीं माने। ऐसे ही दमादम मस्त कलंदर रहेगा, हड़ताल जो है ना जारी रहेगा। ऑयल टैंकर्स मालिकान की हड़ताल के बायस कराची के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो गया है। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों का रश है। सदर में एक पंप से सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज एंडी। आज ही डेफिनेटली ऑयल 2 दिन से जो ये स्ट्राइक है उसका अब जो आपको नजर आ रही है सूरत हाल वो ये है कि लोग आ रहे हैं। ये बाइक्स वाले अगर आप देखें बैकग्राउंड के अंदर तो ये पेट्रोल के लिए आए हुए हैं, लेकिन पेट्रोल पंप जो है वो बंद है। ये गाड़ी भी यहाँ पर किसी तरीके से पहुंची है और पेट्रोल नहीं है, इसलिए ये भी वापस जा रही है। ये है इस वक्त की सूरत हाल के पेट्रोल मिलना बहुत सारी जगहों पे बंद हो गया है, कुछ है जगहें जहाँ पे मिल रहा है। दूसरी जानिब अगर आप ये देखें तो बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। ये टैक्सी भी पहुंची है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। जी भाई, पेट्रोल के लिए आए? जी पेट्रोल मिलता नहीं है भाईजान।
तो आप क्या करेंगे? अब जाएगा वो गाड़ी खड़ा करेगा और क्या करेगा ना, पीएसओ का कहना ये है कि वो अपनी गाड़ियां जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है उसमें वो पेट्रोल की सप्लाई करने को तैयार है, लेकिन मसला ये है कि उन्हें भी सप्लाई नहीं करने दिया जा रहा है। कल भी रोका गया गाड़ी को। अब ना यहाँ पे गवर्नमेंट की रेड शुरू हो जाती है कि वो कैसे इंश्योर करती है कि जो गाड़ियां फिट है स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो पेट्रोल पंप को सप्लाई दे। तो सूरत हाल ये है कि शहर में अब लोगों को परेशानी चेहरे पे छलकना शुरू हो गई है। जी, इस वक्त मुश्किल सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल के बायस कराची के 25% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। दीगर पेट्रोल स्टेशन पर आवाम का ज़बरदस्त रश है। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे अली इमरान से। अली इमरान, आप इस वक्त किस पेट्रोल पंप पर हैं? यहाँ सूरत हाल क्या है? जी, मैं इस वक्त शारा फैसल पे एक पंप पे मौजूद हूँ और जैसा कि पहले हमने रिपोर्ट किया है कि कराची में 25% पम्प्स ड्राई हो चुके हैं और दबाव ज़्यादा है, सेल ज़्यादा हो रही है मोर देन नॉर्मल। तो इस वजह से भी जो स्टोरेज टैंक्स में मौजूद तेल है वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि हुकूमत ऑयल टैंकर्स को 2 साल की मोहलत देने जा रही है मयार पे लाने के लिए। अभी सख्ती हो रही थी मोटरवे पुलिस की जानिब से भी, लेकिन इम्कान है कि कल ये हो जाए और ये भी इम्कान है कि कल स्ट्राइक ख़त्म हो जाए। जी अली इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में फिरोजपुर रोड खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। धमाका करने वाला मुबैना खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल के बजाय रिक्शे में आया और दरख्त के साए में बैठे पुलिस एहलकारों और आम शहरियों के पास जाकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। देखिए इस बारे में अहमद फराज की रिपोर्ट। फिरोजपुर रोड खुदकुश धमाके के हवाले से अहम पेशरफ्त। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल की बजाय रिक्शे में आया। हमलावर गज्जू मत्ता काना की जानिब से पुरानी सब्जी मंडी पहुंचा। हमलावर की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान थी। हमलावर की टांग और सर के बाल DNA के लिए भिजवा दिए गए। धमाके में तबाह होने वाली तमाम मोटरसाइकिलों की शिनाख्त हो गई। तबाहशुदा मोटरसाइकिलें शहीद या जख्मी होने वाले अफराद की हैं। धमाके की FIR में 3 नामालूम अफराद का जिक्र किया गया है। 2 नामालूम अफराद अपने एक साथी को गले मिले और खुद सब्जी मंडी की तरफ रवाना हो गए। खुदकुश हमलावर ने दरख्त के साए में बैठे पुलिस एहलकारों और आम शहरियों के पास जाकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। तहकीकाती इदारों ने धमाके के मुकाम से तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जाए वक़ुआ को पानी से धो दिया और रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। सब्जी मंडी में LDA का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है और अमला इमारतें गिरा रहा है। हसास इदारों ने बंद रोड से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गिरफ्तार शख्स अफगान बाशिंदा है। पंजाब हुकूमत ने धमाके की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया है, जिसमें ISI, IB, CTD, पुलिस और हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर के इत्तफाक हॉस्पिटल में खुदकुश धमाके के जख्मियों की अयादत की। उनका कहना था कि बुज़दिल और दरिंदा सिर्फ दुश्मन ने सफाकाना कार्रवाई की है, कौम इस बुज़दिलाना हमले का बदला जरूर लेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान बख्श। वज़ीर आला पंजाब इत्तफाक अस्पताल गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर कोट लखपत धमाके के जख्मियों की इयादत की। उन्होंने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हदायत की और अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात मालूम की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े में मासूम लोगों और पुलिस को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाली बहादुर कौम के इरादों को मुतज़्ज़ल नहीं किया जा सकता। मासूम पाकिस्तानियों के खून से हाथ रंगने वाले इबरतनाक इंजाम से बच नहीं सकते। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहने वाला खून रंग लाएगा और शोहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर में जनरल अस्पताल का दौरा किया और फिरोजपुर रोड धमाके में जख्मी होने वाले अफराद और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की। देखिए आजम मलिक की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल हस्पताल आमद। फिरोजपुर रोड पर एक रोज़ कबल होने वाले खुदकश धमाके में जख्मी होने वालों की मिजाज पुरसी की। हस्पताल इंतजामिया ने आर्मी चीफ को जख्मियों की हालत और इलाज मुआवजे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने जख्मियों के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। उनकी तरफ से जख्मियों को गुलदस्ते भी पेश किए गए। दौरे के इख्तिताम पर CCPO लाहौर अमीन वैंस और कायम मुकाम IG पंजाब उस्मान खटक ने आर्मी चीफ को खुदकश धमाके से मुतल्लिक ब्रीफ किया।
जिसके बाद आर्मी चीफ वापस रवाना हो गए। कैमरामैन खालिद खान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। आपको ये भी बता दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में सिक्योरिटी इजलास हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि लाहौर और काबुल में एक साथ धमाकों का होना जाहिर करता है कि दहशतगर्द दोनों ममालिक के दुश्मन हैं। अगर गैर मुल्की अनासर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते रहे तो दोनों ममालिक दहशतगर्दी से मुतासर होंगे। पाक फौज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम सब ने मिलकर लड़ी है। दहशतगर्दी के मास्टर माइंड्स और उनके सहूलतकारों के दरमियान मरबूत राब्ते तोड़ने में कामयाब रहे हैं। ये कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स में होने वाले सिक्योरिटी इजलास में। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क दुश्मन दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से ताउन पर तैयार है। दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अपनी सरहदों को महफूज बना लिया, अफगानिस्तान भी इक़दामात करे। आर्मी चीफ ने कहा अवाम किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला देकर दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इजलास के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अस्पताल में फेरोजपुर रोड धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत भी की। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन 10 अगस्त को फैसला सुनाएगा। बाबर आवान कहते हैं इमरान खान पर नाअहली का सिरे से कोई मुकदमा ही नहीं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि PTI एक माफिया है, गैर कानूनी पैसा छुपाया गया। वजीर आजम अदालतों में पेश हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की सरबराही में इमरान खान के वकील बाबर ऐवान ने दलाइल में कहा इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का कोई कानूनी इख्तियार नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी करके उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की। हाई कोर्ट के जज को कानून में लिखा हुआ है आर्टिकल 176(2) में कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो पावर दी गई है वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा आज की डेट में आपके पास पावर नहीं है तौहीन अदालत की। फिर मैंने कहा कि युगांडा और बांग्लादेश में दिया गया इख्तियार इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में पकड़ो, बरतानिया में नहीं दिया गया। पूरी कोशिश की जा रही है सारे रियासत के वसाइल एक मुकदमे पे बचाने के लिए। इमरान खान ये कह रहा है कि मैं कानून से बालातर हूँ। इमरान खान ये कह रहा है कि मुझ पे मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं अदालतों की तस्दीक करूँ। मेरे पास ये इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन के 21 ऑर्डर्स की नाफरमानी करूँ, उस पर अमल ना करूँ, अपने अकाउंट्स जमा ना कराऊं। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत पर कार्रवाई का इख्तियार रखता है या नहीं, फैसला 10 अगस्त को सुनाया जाएगा। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार देने पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त अकबर एस बाबर ने दायर कर रखी है। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ आसिया अंसर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कल जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक नाअहली केस की समाअत होगी। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर इमरान खान की नाअहली से मुतालिक समाअत पर कार्रवाई PTI के वकील अनवर मंसूर के बैरून मुल्क होने के सबब रोक दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि जितने रोज अनवर मंसूर बैरून मुल्क हैं, इस दौरान जहांगीर तरीन के वकील दलाइल शुरू कर दें। अदालत इन केसेस को जल्द निपटाना चाहती है। इन मुकदमात के बाइस आम लोगों के केसेस सुनने में ताखिर हो रही है। PTI के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया था कि अनवर मंसूर 31 तारीख तक वापस आ जाएंगे। हनीफ अब्बासी के वकील का कहना था कि वो जवाब अनवर मंसूर के दलाइल के बाद देंगे। अदालत ने इस दौरान जहांगीर तरीन के वकील को हिदायत की कि वो बुध से अपने दलाइल का आगाज कर दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक उनके वकील नईम बुखारी दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी के मामले पर अदालत उज़्मा कल समाअत करेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मुश्तमिल है। कराची में पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्विस गिरोह का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। 4 हमलों में 10 एहलकारों की शहादत के बावजूद पुलिस एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची के नए पुलिस चीफ को नया चैलेंज दरपेश। 21 मई को बहादुराबाद में 2, 23 जून को साइट एरिया में 4, 21 जुलाई को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 3
और 24 जुलाई को गुलशन इकबाल में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। अब तक पुलिस पर होने वाले 4 हमलों में 10 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, लेकिन कराची पुलिस समेत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस गिरोह के किसी एक मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं कर सका। सीटीडी जराये का दावा है कि शहर में पुलिस की टारगेट किलिंग में दाइश के बागी लड़के शामिल हैं। कुछ मकामात की पुलिस को सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल हुई, लेकिन मुलजिमान की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। जेल से फरार दहशतगर्द शेख मुमताज उर्फ फिरौन और अहमद उर्फ मुन्ना भी ताहाल पुलिस के हाथ नहीं आ सके हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी की जानिब से हरीपुर हजारा के इलाके में मारे जाने वाला छापा भी बेनतीजा साबित हुआ। शेख मुमताज और अहमद वहां से भी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सहूलतकारी के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। अहमद रहमान खान, जियो न्यूज, कराची।